Hello guys. Okay, so this is my social science book और हमने हमारे जो 3 सब्जेक्ट थे हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी उसमें से हमने पहला सब्जेक्ट हमारा उठाया है आर पास्ट. सो आर पास्ट मीन्स क्या है? आर पास्ट वन. सो आर पास्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय आर पास्ट? वाई नॉट इट्स पास्ट ओनली? क्योंकि ये बताता है कि नो वन इज श्योर अबाउट द पास्ट, लाइक वॉट एग्जैक्ट थिंग्स हैपन, वट एवर द मैन्यूस्क्रिप्ट or the inscriptions we got from our Vedas that are fine, and whatever the that data our archaeologists collected, that on behalf of that they have predicted that what could have happened in their past. So but वो ठीक है, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने हमें ये बता दिया कि क्या हुआ था whatever. बट हमें आप क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि हमारी किताब पे नाम ऐसा क्यों है आर पास्ट? पास्ट क्यों नहीं है, एस क्यों लगा हुआ है, वाई दिस इज प्लूरल नॉट सिंगुलर? सो देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, एंड दैट रीज़न इज़ कि पास्ट मीन्स वी डोंट हैव एनी वन पास्ट, वी हैव सो मैनी पास्ट. It can be anything. It can be the book that we are reading, or it can be other than that. So we are just going through the first part of that. Okay, so first part of that, and now later on what will happen. अब इसके अंदर भी हमारे टोटल 12 टॉपिक्स हैं. आई कैन से लाइक 12 चैप्टर वी आर हैविंग, 12 चैप्टर्स वी आर हैविंग. So, and they all have name like what, where, how and when, on the trail of the earliest people, from gathering to growing food in the earliest cities, what book and burials tell us, kingdoms, kings and early republic, new questions and ideas, Ashoka, the emperor who gave up war, vital villages, thriving towns, traders, kings and pilgrims, new empires and kingdoms, and building, painting and books. So we have total 12 chapters here, and इसका जो नाम है, if you will going to see your 6th class science book, these kind of names you are surrounding. Why? Because when a child came from class 5th to 6th, he is getting into the actual aspect of studies. 5th क्लास तक आप सिर्फ ये पढ़ते हैं जो सिर्फ रिक्वायर्ड है. इट्स नॉट नेसेसरी टू रिकॉल, बट द मोमेंट यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, द बुक्स दैट you are getting, the pattern, the course, the chapter, they all are something that have some meaning. So today we are going to study the first chapter only, and I'll going to create 1 hour video for all this history, and we are going to complete this whole history in 12 to 14 hours. Okay, so पहला मेरा चैप्टर रहेगा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. हम लोग ये पढ़ेंगे आज की क्लास में, हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट चैप्टर. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और देखो एनसीईआरटी का एक पैटर्न रहा है कि वेन एवर लाइक either in this social science, the most important thing the guys are giving, if you're starting a chapter, then what they are showing always a question to you so that you can analyze. पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे आप लोग क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे इनका क्वेश्चन. लाइक रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. रशीदा बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. सडनली उसकी जो आंखें थी एक हेडलाइन के ऊपर गई. न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा एक मोटी सी हेडलाइन होती है और एक छोटी सी हेडलाइन होती है. सडनली इसकी आइज़ गई हैं कहाँ पर? एक हेडलाइन पे गई कि 100 years ago. 100 years ago. And then what happened? She is in dilemma. Like what happened? What happened suddenly? And then 100 years ago means 100 साल पहले उसने क्या सोचा यार? उसने सोचा कि ऐसा क्या है कि इन लोगों को ये पता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था. How they know? How could they know? And do they have anything? How can they? So when a child is young, he don't know like what all things he is having. So इसका ये क्वेश्चन रहा, और इसका ये क्वेश्चन हुआ तो इसको हेल्प हुई, रशीदा को हेल्प हुई, like what she need to consider now. Now let's see. She said like finding out what happened. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. कल क्या किया आपने? कल आपने रेडियो सुना, आपने टेलीविज़न देखा, आपने न्यूज़पेपर देखा, आपको सब याद था. लास्ट ईयर आपने क्या करा? आपने किसी से पूछा कि क्या बाय व्हाट अबाउट लॉन्ग अगो.
लाइक तुम्हें क्या 100 साल लास्ट ईयर या आज के 50 साल या 10 साल या 100 साल पहले का याद है? नो वन नोज। इवन मोस्ट ऑफ अस, कई बच्चे तो आज के 14 ईयर्स पहले पैदा हुए हैं, कोई 12 साल के हुए हैं, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है। यू कैंट गो बियॉन्ड दैट, बट देयर आर सम डेटा दैट इज ऑलवेज अवेलेबल दैट कैन हेल्प यू, that can help you to know the prospect. So what can we know about the past? Okay, so what can we know about the past means there are several things we can find out what people ate. Okay, okay, so what can we know about the past? Sorry for the break guys, I have some urgent work. And then what can we know about the past? हमें हमारे पास्ट से क्या पता चलता है? Can anyone have any idea? ओके, सो पास्ट से ये पता चलता है, लाइक वन थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू बच्चे, एक चीज़ मुझे आप लोगों से ये पूछनी है कि डू यू रिमेंबर or do you have ever talked to your grandparents and asked them like what kind of living criteria the guys have, what they do eat that time, although they are eating the same things? but क्या होता था पहले के टाइम में, क्या होता था, हम लोग सिटी, गांव से सिटी में आए, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन सिटी से सिटी में ही रही, और आप में से कई बच्चे होंगे जिनके विलेजेस होंगे ही नहीं. आई एम डैम श्योर अबाउट दैट थिंग. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट कि हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम आज के दिन पे जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं दैट आर समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आर पास्ट, एंड आर पास्ट इज़ नथिंग दैट इज़ आर एंसेस्टर. अगर हम आज के दिन कुछ भी करते हैं, इफ़ यू एवर हर्ड अबाउट योर पेरेंट्स लाइक वी हैव अ सोसाइटी, सो दैट सोसाइटी टेल्स दैट यू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड and that is like 200-300 years ago, and you are following the same concept or same custom that they had followed in their life, correct? So अब ये आपको ये पूछ रहा है कि हम हमारे पास से कैसे पता लगाते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि आप when you born up and when your parent just saw you, suddenly they will tell you that okay, this is my newborn baby, I am going to help him like that, etc etc. But this is not the case always. So there are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. What we can find, we can find out about the lives of hunters. Hunters are very important. लाइक अभी हमें क्या होता था, उससे पहले हमें पता चलता था हंटर्स कैसे रहते हैं, हर्डर्स कैसे रहते हैं, एक फार्मर की लाइफ कैसी होती है, एक रूलर की लाइफ कैसी होती है. फॉर एग्जाम्पल आज के दिन रूलर को आपको पता ही होगा दैट हाउ रूलर्स आर देयर दीज डेज. ओके, देन मर्चेंट्स कैसे होते हैं, प्रीस्ट कैसे होते हैं, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट. तो वी कैन अब नाउ दे ऑल हैव डिफरेंट स्टोरीज, दे ऑल हैव डिफरेंट पास्ट, एंड दे ऑल हैव डिफरेंट लाइकिंग्स लाइक यू हैव. माइट भी आपके फादर कोई कारपेंट्री का हो, किसी के शोरूम हो, किसी के फादर फार्मर हो, किसी के फादर बिजनेसमैन हो. तो वो क्या कर रहे हैं, अपने एंसेस्टर बैकग्राउंड को आगे लेते हुए जा रहे हैं, एंड दे आर फॉलोइंग द सेम. सम ऑफ योर फादर आर इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड यू आर डूइंग द सेम. ओके, सो वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे? दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन, सॉरी so sorry my page just okay. so पहला हमारा एक क्वेश्चन था इसमें अंदर what, where, how and when. तो पहला what हुआ, what, how, and then we have where, कहाँ पर. there is a find the river Narmada on map first, page second. when you will open your page second, so what you will find out, अपना page second निकालो, वहाँ पे देखो कि वहाँ पे नर्मदा को मैप आउट करो. यू विल फाइंड कि जो नर्मदा होगी, नर्मदा रिवर जो है हमारी, कहाँ मिलेगी आपको? नर्मदा मिलेगी यहाँ कहीं, नर्मदा मिलेगी आपको, ये रही. दिस इज़ योर नर्मदा रिवर. इफ़ इट इज़ विजिबल यू गाइज, ये आपकी नर्मदा रिवर है, करेक्ट. अभी ये क्या बोल रहा है उसी पैराग्राफ में, ही इज़ ट्राइंग टू से कि आज से बहुत साल पहले
जो लोग थे, जो स्किल्ड गैदरर्स थे, स्किल्ड गैदरर्स मतलब जिनके पास स्किल्ड थी गैदर करने की, वो लोग क्या करते थे, अपना फूड इकट्ठा करते थे। दे आर स्किल्ड गैदरर्स, या हंटिंग से करें या कैसे भी करें, बट दे आर स्किल्ड इन दैट। अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक काम करेगा तो डेफिनेटली ही विल वन डे ही विल बी कॉल्ड एज अ स्किल्ड पर्सन इन दैट पर्टिकुलर वर्क। सो अब क्या होता था, उन्हें अच्छे से पता था कि खाना कैसे गैदर करना है, और उन्हें ये भी पता था कि उनके इस लेट सपोज इसके आसपास जो भी प्लांट्स हैं या हर्ब्स हैं या शर्ब्स हैं, वो क्या उनके खाने के लायक हैं, या कौन सी चीज़ों में फ्रूट आता है, कौन सी रूट किसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर उनके खाने के लिए। सो दे ऑल नो ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो वो क्या करते थे, इन सब चीज़ों के अलावा उन्होंने हंटिंग भी स्टार्ट करी है। along with that they started hunting also. So now find, अब पहली चीज़ ने ये बोला कि आपने नर्मदा रिवर आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट थिंग ही इज सेइंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, ये नॉर्थ है हमारा, दिस इज नॉर्थ, ओके, एंड देन दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। सो वी हैव सुलेमान, we have Suleiman and Kirthar hills this side. Now you can easily locate that these are the Suleiman and Kirthar hills and they are the part of Pakistan. Okay, so some of the areas, अब यहाँ पे क्या होते थे कि अब इस पर्टिकुलर एरियाज़ में, इन पर्टिकुलर एरियाज़ में जो मैन और वुमेन थे, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, एंड दैट वॉज अराउंड 8,000 ईयर्स अगो। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि जो वीट और बार्ले था एशिया में सबसे पहले, या उसका जो कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, सो अकॉर्डिंग टू आर दिस NCERT बुक, दैट वाज ऑन किरथर एंड सुलेमान हिल्स एंड अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। ओके, सो दैट वाज 8,000 ईयर्स अगो बिगिन। ओके, सो देन व्हाट हैपन, अभी जब इन्होंने यहाँ पे क्रॉप उगाना शुरू करा, उसके बाद में लोगों ने यहाँ पे क्या करा, लोगों ने यहाँ पर एनिमल्स को रखना स्टार्ट कर दिया, लाइक शीप कोट फॉर द सेक ऑफ मिल्क और वूल, एंड देन कैटल दे स्टार्टेड यूजिंग। एंड सडनली धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे उन्होंने यहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट करा, क्योंकि अब उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर लिया तो दैट मीन्स उन्हें इस जगह पे रहना पड़ेगा, एटलीस्ट 5-6 मंथ तो उन्हें रहना पड़ेगा। और क्योंकि उनके पास यहाँ पे रिवर थी और हिल्स थी, तो दे हैव अ गुड सोर्स जिससे वो कल्टिवेट कर सकें, एंड दे कैन प्रोड्यूस वीट एंड बार्ले इन गुड क्वालिटी। सो दे जस्ट डिड दैट, एंड देन लेटर ऑन व्हाट हैपन, अब उन्होंने यहाँ पे सब कुछ रहना और विलेजेस सेटअप कर दिए, विलेजेस उन्होंने सेटअप कर दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज अ सस्टेनेबल एरिया फॉर सर्वाइवल ऑफ द पीपल। Okay, then there is a thing again, we have located 3 places. One is my Narmada river, second one is the Kirthar and Suleiman hills, and the third one is the Garo hills. Garo hill कहाँ पर है हमारी, ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। सी दीज आर माई गैरो हिल्स, और अगर आप देखोगे गैरो हिल्स के अलॉन्ग मेरे पास जा रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो ब्रह्मपुत्रा रिवर बहुत हेल्पफुल है बिकॉज दिस इज़ द रिवर, एंड आई टोल्ड यू कि रिवर के अलॉन्ग ही सबसे पहले हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो सेटअप हुई थी। तो सेकंड हमने देखा हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर। आगे अभी आप ब्रह्मपुत्रा रिवर में ये देखोगे कि यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो गया। अब क्या था, यहाँ पे पहली बार यहाँ पर क्या उगाया गया, यहाँ पर पहली बार राइस उगाया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि राइस एशिया में कौन सी जगह उगाया गया, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस, द गैरो हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्रा रिवर। राइस, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर हमारे राइस सबसे पहले उगाए गए। अगर आप अब चलते हो आगे, अब ये बोल रहा है कि अब ये आपको बुक में बोलते हैं कि इंडस रिवर आपको ढूंढ निकालनी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो आपको दिख रहा होगा दिस इज़ माय इंडस रिवर, और ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं सारी की सारी। फर्स्ट झेलम, ओके सॉरी, झेलम, चेनाब, रावी, बी, सतलुज। सो दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। फाइन। So what happened, आज से 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. So about 4,000
700 years ago there was some good cities that established on these regions. Okay, एंड देन उसके बाद में 2500 साल बाद में लाइक 2500 ईयर्स अगो 2500 ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड देन देर वो सिटीज़ एस्टेब्लिश इन 250. ओके, सो 4700 के अंदर क्या था, 4700 ईयर्स अगो 4700 ईयर्स अगो व्हाट हैपन, यहाँ पे सिटीज़ एस्टेब्लिश होने स्टार्ट हुई. बाद में 2500 ईयर्स अगो गंगा के अलॉन्ग और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग क्या थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई. फाइन. एंड देन अब हमारे पास इसी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है, वो ये बोलता है कि लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अबाउट द सन. सोन, और सोन क्या है, इट इज़ ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. इफ़ यू विल सी यमुना एंड देन यमुना की चंबल हो गई, गंगा की हमारी सन हो गई. सन इज़ द रिवर जो कि I'll tell you later when we are going to read the geography. There are some facts regarding this river also. Okay, then what happened, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि this is the tributary of Ganga. Okay, then what happened, अब ancient time में क्या होता था, जो एरिया होता था along the river वहीं पर ही धीरे धीरे सेटलमेंट होना स्टार्ट हुआ. करेक्ट, ऑल एग्री अबाउट दिस थिंग. सेकेंड थिंग क्या है, अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नो अबाउट द किरथर सुलेमान, यहाँ पे क्या हुआ, वीट पार्ले. देन यहाँ पे हमारे पास क्या आया, राइस आया. नर्मदा के अलॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुई. यहाँ पे मेरी इंडस रिवर थी, छोटी छोटी सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई इन ट्रिब्यूटरीज के अलॉन्ग. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ गंगा. वाई एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, द रीज़न बीइंग, क्यों ऐसा था, यहाँ पर सबसे बड़ा एक राज्य, एक बहुत बड़ा लार्ज किंगडम यहाँ पे सेटअप हुआ और उस लार्ज किंगडम का नाम क्या था, मगध नाम था उसका. ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये बिहार के अंदर आता है और इसके रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. वाई दे वर पावरफुल, बिकॉज उस टाइम पानी, वाटर, सॉयल एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता था. इट इज़ अ गुड रिसोर्स फॉर कल्टिवेशन. And you know today also 57% of the people in our India are dependent on cultivation. और पहले भी यही होता था कि जो एरिया आपका फर्टाइल है, जहाँ पे कल्टीवेशन अच्छे से होती है, वो एरिया किस चीज़ के अंडर में आता है, दैट एरिया इज़ वेरी यूजफुल फॉर कल्टिवेशन. और वही एक किंगडम का, जैसे आजकल पैसा, इकोनॉमी, सो दैट इज़ अ काइंड कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमी फॉर द किंगडम. सो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या था, मगध है. मगध एक बहुत बड़ा किंगडम यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुआ. एंड अलॉन्ग विद दैट, इसके अलॉन्ग में साइड के अंदर जो छोटे छोटे पोर्शंस है वहाँ पे भी छोटी छोटी इसी के छोटे छोटे किंगडम स्टार्ट हुए और एक बहुत बड़ा किंगडम बन गया. करेक्ट. अब क्या करते थे, अब एक चीज़ और आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि थ्रू द टाइम व्हाट हैपन, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. लोगों ने क्या करा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया. आई हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स. अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, गंगा ट्रिब्यूटरी, और ये देखो ये मगध बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके रूलर भी जो मैंने अभी आपको बताया कि इसका रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने बहुत लार्ज किंगडम सेटअप कर दिया. ओके, सो अदर देन दैट देयर आर अदर किंगडम्स ऑल्सो, बट मगध सबसे बड़ा किंगडम था जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था एट दैट टाइम. देन लेटर ऑन अब लोगों ने क्या करा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल लाइक आप विलेज में रहते हो, देन योर फादर ट्राई टू मूव इन सिटी. करेक्ट, विलेज, ओके, एंड देन सिटी. सो दिस इज़ अ मूवमेंट. वाई, बिकॉज आपने क्या करा, एक बेटर रीच, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर रीच यू जस्ट मूव्ड. करेक्ट. अब उस बेटर रीच के लिए आपने मूव स्टार्ट कर दिया. तो पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर पार्ट. ओके, एंड द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयस, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम. अब आपको एक चीज़ यू कैन ईजिली नो, लाइक पीपल ने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह. अब हमेशा बीच में हर्डल क्या आती थी, बहुत बड़ी हिल्स होती थी या माउंटेन्स होते थे, हिमालयाज होते थे, बीच में डेजर्ट पोर्शन भी आता था जो कि क्या करता था, इधर से उधर मूवमेंट लोगों का इम्पॉसिबल कर देता था. लाइक रिवर्स भी आती थी. तो इस हर्डल को हटाने के लिए व्हाट हैपन, अब लाइक ह्यूमन बींग्स व्हाट दे डिड जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड, जीने के माध्यम से,
जीने के माध्यम से और नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट से बचने के लिए दे स्टार्टेड मूवमेंट, द माइग्रेशन दैट वी कैन से। अभी जैसे लोग गांव से सिटी में आते हैं फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ, सिमिलरली व्हाट हैपन दैट टाइम, वहाँ पे जॉब्स वगैरह तो इतनी थी नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि दिस इज़ हाउ वी कैन नो लाइक what is job and all that. But the thing, the people are aware like just for the sake of livelihood they are just moving from one place to another place so that they can escape themselves from the flood and drought. The same case happen in Jammu and Kashmir, like सर्दियों में ऊपर रहते हैं पहाड़ों के, गर्मियों में ऊपर रहते हैं और सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। तो ये एक आपके उनका ट्रेडिशन है, लाइक what their ancestor follows because of the geographical condition they are following the same, because जो sustainability है किसी भी region में रहने की वो बहुत important है और उसके according लोग एक दूसरे को adhere करते हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स। ओके, अभी अब ये तो था नॉर्मल मैन की लाइफ में कि क्या होता था, दे जस्ट एस्केप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in the search of food, and so that they can escape themselves from the disaster like flood and drought. So what happened, other than that there are kings also. वो क्या करते थे, बड़ा बड़ा लैंड आर्मीज को कॉन्क्वेयर करते थे so that वो अपना किंगडम एक्सपेंड कर सकें and they can collect the taxes, और टैक्सेस के थ्रू दे कैन पे द रेवेन्यू और दे कैन पे द प्राइस टू देयर आर्मीज। ओके, सो धीरे धीरे क्या हुआ, सेम मूवमेंट के ऊपर लोग भी माइग्रेट होते रहे, जिन्हें कल्टिवेशन करना था वो कल्टिवेट करते थे खुद के खाने के लिए और अपने किंग को देते थे। प्लस किंग क्या करता था, आसपास के एरियाज़ को कॉन्क्योर करता था, जीतता था फाइट के बाद में, एंड देन ही is doing the same. Then what happened, there are other than those there are some more people like जिनको घूमने का शौक था, जो क्या करते थे, जिनको ट्रैवल करना होता था। और वो ट्रैवल इसलिए नहीं करने थे, लाइक आजकल के लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं नया सिर्फ देखने के लिए। दे नो लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप और मेरे को पता है कि अगर मैं स्विट्ज़रलैंड जाऊंगी तो मुझे वो 4 ऐसी कौन सी जगह हैं जो बहुत मोस्ट फेमस है। बट उस टाइम क्या होता था, what happened that time, people used to travel for the sake of to discover new and exciting places, जिससे कि वो नए और एक्साइटिंग प्लेसेस क्या करें, डिस्कवर कर सकें। करेक्ट, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और इससे क्या होता था, when a one person travel to another person, like if you are going from city to another place, you are going to tell them the way you lived in that country। अगर आप आज के दिन फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो you can easily, आप फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आप उन्हें बताओ कि like what kind of culture you had in India, what you used to do, what you used to eat and all those things. So this is something that happens in the past also. ये चीज़ पहले भी होती थी। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, दिस इज जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन। अब ये बताओ आप, एक क्वेश्चन तो ये है कि वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, आज के दिन लोग क्यों ट्रैवल करते हैं और पहले लोग क्यों ट्रैवल करते थे। पहले का रीज़न ये था, आज का रीज़न आप लोगों को बताना है। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं एंड आई वुड लव टू नो what your thought is, so please comment in my comment box so that I may know like okay you are interested in these videos. Okay, so then what happened, okay so again you just उसी मैप को एक बार आप दोबारा देखिए। अब वहाँ पे क्या थे, आप ये देखना कि बीच में कहीं सी भी आ रहा है। अब उसी मैप को आप देखोगे तो you will find out there is a Indian Ocean, Bay of Bengal, Arabian Sea, correct? And then what happened, hills, mountains और seas भी थे जो कि एक नेचुरल फ्रंटियर्स थे किसी भी सब कॉन्टिनेंट के। अब हमें ये पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना और स्पेशली सीज को क्रॉस करना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था, तो लोगों ने क्या करा, शिप्स वगैरह कर दी। ओके, अब उन्होंने क्या करा, जब एक बंदा किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में जाता है तो ही इज़ नॉट टेकिंग द आइडियाज़, ही इज़ टेकिंग द वे ऑल्सो। उसके साथ साथ उसका कोई ट्रेडिशन या उसका कल्चर भी वो नई जगह लेकर जाता है। उस नई जगह लेकर जब वो अपना कल्चर जाता है तो वहाँ पे 2 कल्चर हो जाते हैं, एक तो उस जगह का कल्चर प्लस एक उसका कल्चर। अगर वो उस जगह से इफ़ ही सेटिस्फाई एंड इफ इज़ ओके, then he will continue with his own culture and tradition, and then later on the 2 culture and tradition will going to exist there.
Similarly, if you are talking about India, then there are so many cultures and tradition, and people are traveling from one place to another place, but they are taking their culture and tradition same. Okay, so people have shared new ways of carving stone, and जब नए नए लोग एक दूसरे के साथ मिलते थे तो वो नया नया तरीका बताते थे खाना बनाने का, या स्टोन्स पे नई पेंटिंग करने का, या गाने किस तरीके से कंपोज होते हैं, या खाना कैसे बनाना है। ये तो बहुत साल पहले की बात है। Same things happen in India also and in the other countries also. If you are going to your friend, for example, like you're going to America and then you just got you are invited by your friend on a dinner, and you just tell him okay, we are both going to cook the food together. देन वॉट हैपन, अगर मैं इंडियन हूँ वो अमेरिकन है, वो मुझे ऐसी डिशेस खिलाएगा जो अमेरिका में फ़ेमस होंगी, और अगर मेरी कैपेसिटी होगी तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी द डिशेज दैट आर फेमस इन इंडिया। ओके, सो आई बिलीव दीज एग्जाम्पल्स आर हेल्पिंग यू अ लॉट। ओके, देन हमारे पास क्या है, नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड, अब मुझे बताइए हमारे इंडिया का जो भारत का जो नेम है वो हाउ वी केम टू नो, लाइक व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री। लाइक हम कई लोग उसे इंडिया बोलते हैं, कई लोग भारत बोलते हैं। गाँव जाओगे तो लोग आपको भारत के नाम से ही बोलेंगे, हिंदी न्यूज़पेपर में भी को भारत ही मिलेगा। इंडिया, आई सॉ इंडिया रिटन ऑन न्यूज़पेपर इन हिंदी न्यूज़पेपर, बट भारत इज़ वेरी कॉमन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश देयर इज़ अ इंडिया। सो हमारा ये जो नाम है कहाँ से आया है, इंडिया और भारत हमारा जो नेम है वो कहाँ से आया है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडस रिवर मैंने आपको दिखाई थी, जो पाकिस्तान हमारे इंडिया के साइड नॉर्थ वेस्ट साइड के अंदर है, ठीक है। अब उसको इंडस रिवर के नाम पे बोलते थे। सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुई तो पीपल स्टार्टेड कॉलिंग द एरिया दैट आर जस्ट राइट साइड टू दैट इंडस, उसे वो उन्होंने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, सिंधु। संस्कृत के अंदर उसे सिंधु बोलने लग गए और उसे इंडस बोलने लगे। अब जैसे ईरान और ग्रीस अपने एटलस में फाइंड आउट करना, आई डोंट हैव एटलस राइट नाउ, अदरवाइज आई वुड शो यू दैट। ओके, सो एटलस में आप ये दो ईरान और ग्रीस फाइंड आउट करना, बिकॉज दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज। लाइक आप आगे भी जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह में पढ़ोगे, और देन यू विल केम टू नो लाइक ईरान एंड ग्रीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द Iranians and Greeks came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus. Okay, तो एक चीज़ तो आपको हो गया, ये 2500 साल पहले आए थे, और ये क्या थे, इंडस रिवर के साथ फैमिलियर थे, और वो इसको क्या बोलते थे, हिंदोस बोलते थे या इंडोस बोलते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर आर कॉल्ड इंडिया। यही लोग थे, ईरान और ग्रीस के लोग ही थे जो आज से 2500 साल पहले आए थे, और जो हमारी जो इंडस रिवर थी, लाइक जो हमारी इंडस रिवर थी उसके राइट साइड वाले एरिया को ही इंडिया बोलते थे, इंडोज या हिंदूज बोलते थे। उसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। और संस्कृत में ओके, सो द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये भी क्या बोल रहा है, जो भारता नेम था वो उन लोगों यूज़ करते थे जो कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर रहते थे, हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ओके, ये जो ऋग्वेदा वाला सीन है ये हम लोग लास्ट तो सेकेंड लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ऋग्वेद होता है, हमारे 4 टाइप के वेद होते हैं, दैट वी विल गोइंग टू रीड लेटर इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। भारत याद रखना, इंडिया हमारा ग्रीस और ईरान। ओके, इंडिया हमारा कहाँ से आया है, कैन एनीवन रिमेंबर, ईरान एंड ग्रीस। ओके, एंड हमारा जो इंडिया है वो वहाँ से आया, प्लस जो भारत है, भारता शब्द है वो लोग यूज़ करते थे जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर रहते थे, जिनका ऋग्वेदा के अंदर मैंशनड है। ओके, देन व्हाट हैपन, अब हम लोग कुछ नया चीज़ देखेंगे। हमने हमारे पास्ट के बारे में कैसे फाइंड आउट करा, तो कैसे फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि लोगों की एज तो 100 ईयर्स और 120 ईयर्स ही होती है, उससे ज़्यादा दे कांट लिव आफ्टर दैट। सो हाउ डू वी नो लाइक हमारे पास में क्या हुआ था एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। सो हमें क्या मिला, जो सबसे पहली चीज़ हमें मिली मैन्यूस्क्रिप्ट मिली। अब मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब सबसे पहले क्या होता है, मैन्यूमिथ जो हाथ से लिखा हुआ होता है, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या, हैंड रिटन। अब हमें हैंड रिटन चीज़ें मिली, किस चीज़ पे मिली, अभी यहाँ पे दे रखा है, पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट written about 1,000 years ago, and the palm leaves were cut into pages and tied together to make books. Okay,
तो ये चीज़ मैं आपको एक लास्ट किसी चैप्टर में दिखाऊंगी ऑन पेज नंबर 45, एंड आई ट्राई टू रिकॉल यू कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, जो ये हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट होती क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया कि एक हैंड रिटन स्क्रिप्ट है, हैंड रिटन स्क्रिप्ट है, और जो हमें मिली थी 3500 ईयर्स अगो, उसके अंदर क्या था? वो पाम की लीफ होती थी, ठीक है, जो कि कहाँ मिलती थी? स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में मिलती थी या नॉर्थ में मिलती थी, जो कि स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, दे आर यूजली ऑन अ पाम लीफ, जो कि और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री, उसको हम लोग बोलते थे बर्च बोलते थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिमालयाज में होती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, और मैन्यूस्क्रिप्ट किसके ऊपर लिखी गई थी, और कैसे वो प्रिपेयर्ड होती थी, बर्ड से प्रिपेयर्ड होती थी, और हमें हिमालयाज में मिलती थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे साल बीतते थे, अब क्योंकि वो तो पेड़ का मटेरियल था, एंड यू ऑल नो चीज़ें क्या होती है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। सो लाइक दिस यू कैन सी, दिस इज़ अ पाम लीफ और अ बर्च, और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये रिटन स्क्रिप्ट है, ये एक मेन्यू स्क्रिप्ट है। ऑल दो द लैंग्वेज वी कांट रीड बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ रिटन ओवर है। ओके, सो अब ये पेपर, क्योंकि ये लीव्स का बना हुआ है, तो इट कैन बी ईजिली डिस्ट्रॉयड, और अगर कभी फायर भी लग जाती है तो इट कैन ईजिली बर्न ऑल्सो। ओके, अब क्या होता था, इनमें से काफ़ी चीज़ें तो ख़राब हो गई, काफ़ी पन्ने ख़राब हो गए, कुछ टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ में रखे गए ये। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस पे ही है, इसके अलावा इनके पास जो उस पर्टिकुलर एरिया के किंग की लाइफ भी होती थी, मेडिसिन्स और साइंस के बारे में भी बताते थे। सो दे ऑल हैव डिफरेंट दे ऑल हैव डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक मेंटालिटी वॉज नॉट लाइक दैट कि अगर टेम्पल और मोनेस्ट्री में होगी तो इट विल गोइंग टू डील ओनली विद द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। दैट वॉज नॉट द फैक्ट. Other than that, they found manuscript of medicine and science, lives of kings also. So beside these there were epics, poems, plays. इसके अलावा वहाँ पे क्या था? epic थी, poem, plays, सब मिलता था उनको। अब इसमें से जो बहुत सारी जो स्क्रिप्ट थी, मैन्यूस्क्रिप्ट थी, वो संस्कृत में लिखी हुई थी। कुछ थी उनकी जो नॉर्मल भाषा उस टाइम पे वो यूज़ करते थे, जिसका नाम था प्राकृत था, और कुछ क्या थी तमिल के अंदर थी। तो 3 लैंग्वेजेस दे वर यूज्ड। कुछ तो संस्कृत के अंदर थी, मोस्ट ऑफ देम आर रिटन इन संस्कृत, कुछ उनकी नॉर्मल लैंग्वेज प्राकृत में, और कुछ क्या थी तमिल के अंदर थी। ओके, देन क्या होता था, अब ये क्या बोल रहे हैं, अब हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, हमने मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ी। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है जब आप किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ लिखते हो, राइट, हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ लिखते हो, तो वो क्या होता है? आपका इंस्क्रिप्शन होता है। लाइक दीज आर राइटिंग्स ऑन, राइटिंग्स किसके ऊपर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्क्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? ये हार्ड राइटिंग होती है, हार्ड सरफेसेस ऑफ स्टोन्स और मेटल। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इन, ओके, तो व्हाट हैपन, लोग क्या करते थे उस टाइम पे, जो किंग थे वो अपना ऑर्डर, या वो अपना ऑर्डर कहाँ देते थे? वो इंस्क्रिप्शंस पे दे देते थे कि लोग उसे मिटा ना सकें और वो रहे। अगर किसी को उसकी किंगडम में रहना होता तो दे हैव स्पेसिफाइड ऑर्डर्स दैट दे नीड टू फॉलो, तो उसके लिए वो इंस्क्रिप्शन देते थे। उसके अलावा भी क्या होता था, ये तो ऑर्डर्स के लिए इंस्क्रिप्शंस यूज़ हो गया, राजाओं के ऑर्डर के लिए इंस्क्रिप्शन यूज़ हो गया। दूसरा क्या होता, अदर देन दैट, इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे मैन एंड वीमेन, लाइक दे कैन इंक्लूड द नॉर्मल मैन और द किंग एंड क्वींस, वो इंस्क्रिप्शंस पे वो भी रिकॉर्ड करते थे कि उन्होंने क्या किया, क्या किया, दैट मीन्स क्या अच्छा किया। ओके, सो किंग्स, दैट फॉर एग्जाम्पल लाइक इन ऑफर, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, क्या किया, लाइक अगर कोई क्वीन है एंड दैट क्वीन हैव like fought a war against enemy and she won, then there will be inscription available on her name that she fought the war and she won and all those things. So these all things are there, and similarly for the king also, जैसे कि राजाएं अपनी विक्ट्रीज का इंस्क्रिप्शंस रखते थे। बाद में एक चीज़ आप देखेंगे कि जो एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन जिसकी डेट हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने डिपिक्ट करके 2250 ईयर्स अगो निकाली, वो कंधार में उन्हें मिली। आज के दिन कंधार जो जगह अफ़गानिस्तान के अंदर है, और अशोका ने वो लिखवाई थी।
और पहली जो हमें जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट मिली वो 2250 मिली, एंड देन लेटर ऑन वी विल गोइंग टू रीड अबाउट द अशोका इन चैप्टर 8। और अशोका का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू गाइज विल बी थ्रिल्ड टू नो दैट अशोका वॉज रियली वेरी ग्रेट रूलर। ओके, देन अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। आजकल क्वेश्चंस में क्या आता है, द एनसीईआरटी का वो पुराना पैटर्न चला गया, जब आपके लास्ट के क्वेश्चन आ जाते थे, दे कैन आस्क एनीथिंग टू यू, सो यू गाइज मस्ट प्रिपेयर। लाइक अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप एडवांटेजेस बता सकते हैं हार्ड सर्फेसिस के क्या हैं और क्या क्या हमारी डिफ़िकल्टीज़ है। एडवांटेजेस आप बहुत बता सकते हो, क्या क्या एडवांटेजेस होंगे कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, यू कैन नॉट ईजिली डिस्ट्रॉय, आग लगेगी तो भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये इसकी जो लिविंग ईयर्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, एंड देन व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़ क्या होंगी। ऑब्वियसली बात है, वी ऑल नो कि किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखना इज़ नॉट ए ईजी थिंग, दैट इज़ रियली वेरी हार्ड थिंग। Okay, then there were many other things that were made and used in the past other than these, other than the manuscripts and inscriptions we have, other than so many things जो कि पास्ट के अंदर थी, बनाई गई थी, और जिस पे पास जिसको हमारे पास में लोग यूज़ भी करते थे, उसके बारे में कौन पढ़ता है, आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि हमारी सारी की सारी पुराने स्टोन्स, ब्रिक, पेंटिंग्स और स्क्रप्चर के बारे में जो पढ़ता है, स्कल्पचर, sorry my pronunciation is bad in this word. Okay, then what happened, what archaeologists do, they just dig under the surface of the earth to just find out the tools, weapons, pots, pan, ornaments and coins जो कि पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। अब इनके जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोन की भी होती थी, कुछ हड्डियों की होती थी, कुछ क्ले की होती थी, कुछ मेटल की होती थी, करेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड होती थी, वो जो भी ऑब्जेक्ट हार्ड होती थी वो लंबे टाइम तक चलती थी, ये तो आप सबको पता ही है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो अब जैसे मान ली ये मटका है, दिस इज़ अ पॉट, ये एक सिटी से उन्हें मिला है, ओके, एंड दिस पॉट इज़ अबाउट 4700 ईयर अगो, ये कुछ 4700 साल पहले का है। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिल्वर कॉइन है, ये 2500 साल पहले ऐसा एक कॉइन यूज़ करता था, आई मीन टू से लाइक 2500 ईयर्स अगो दिस काइंड ऑफ कॉइन वर यूज्ड। नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी कि ये कॉइन और आज के हमारा जो कॉइन है, जो कि सर्कल में मिलता है, 10 रुपये का कॉइन, आई नो 1 रुपये का कॉइन तो आप लोग मोस्टली लोग यूज़ करना ही भूल चुके हैं, बट जो 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, या 5 रुपये का, या 10 रुपये का, उसे कंपेयर करके देखो कि इसके और उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब हमारे क्या करते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही आर्कियोलॉजिस्ट है, मैंने आपको बताया कि दे स्टडी अबाउट द स्टोन्स एंड बोन्स एंड और द हार्ड मेटल्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। सो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बोन्स एनिमल्स की, बर्ड की, फिश की, वो उससे ये पता लगाते हैं कि वेदर क्या लोग उसे खाते थे। How like they are just doing this, if seeds of grains or pieces of wood have been burned, they survive in a charred form। अब एक चीज़ आप ये देखिए, अगर सीड्स ग्रेन के या पीसेस वुड के अगर आग लगती है उनको, तो वो चैरेट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, करेक्ट। बट अगर एनिमल्स की हड्डियाँ हैं, बर्ड्स की हैं, या कोई मेटल है, इट विल गोइंग टू टेक लॉट टू बर्न, एंड बट स्टिल इट इज़ अवेलेबल। सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी आपसे एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़े भी मिले होंगे, दिस इज़ अ क्वेश्चन। वेल ये भी हमें सोचना पड़ेगा, लेटर ऑन वी विल केम टू नो लाइक उन्हें क्या क्या मिला है। ओके, जो स्कॉलर्स होते हैं, हिस्टोरियंस, जो कि स्कॉलर्स होते थे, जो हमारे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लाइक वो मैन्यूस्क्रिप्ट को इकट्ठा करते हैं, इंस्क्रिप्शन को इकट्ठा करते हैं, आर्कियोलॉजी को इकट्ठा करते हैं, और उसके जो स्कॉलर्स हैं, हमारे हिस्टोरियंस जो स्कॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके दे जस्ट स्टडी, और फिर वो इससे एक इंफॉर्मेशन गैदर आउट करते हैं कि भैया हमारे पास में क्या क्या हुआ होगा। सो वी हैव वन सोर्सेज आर फाउंड, जैसे उन्हें सोर्सेज मिल जाते हैं तो वो उनके लिए एक एडवेंचरस होता है। वंस दे फाइंड समथिंग दे आर क्यूरियस, लाइक ओके जब ये था उसके बाद में क्या हुआ होगा। देन उनके कुछ डिपिक्शंस होते हैं, और उसी के बिहाफ पे हमारी एक हिस्ट्री बन जाती है, और जो कि हिस्ट्री आप सब लोगों को पढ़ने में जोर आता है। बट आर हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डोंट थिंक इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप खुद की लैंग्वेज में अगर आपको आता है
then you can easily write. ओके, सो देन व्हाट हैपन, इनको जैसे इंटरेस्ट आता है, जैसे अगर आपको किसी को साइंटिस्ट बनना है और वो कुछ चीज़ इनोवेट करता है तो उसे छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, सिमिलरली ऐसे ही इनको भी इंटरेस्ट आता है, राइट? इन्हें छोटी सी चीज़ मिलती है, देन दे स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग 2 more things, then they came, then the result is something, so then the guys are getting a motivation and an intention like yes, I'm getting it. So they got motivated and then they find the result, the outcome of manuscript inscription and archaeology. Okay, so historians and archaeologists are like detectives. So इससे क्या पता चलता है कि जो historians हैं वो क्या करते हैं, archaeologist सबसे पहला काम कौन करता है, सबसे पहला काम वो करता है आर्कोलॉजिस्ट करता है। वो क्या करता है, मैन्युस्क्रिप्ट लेता है, इंस्क्रिप्शन लेता है। ओके, आर्कोलॉजिस्ट ने सब कुछ स्टडी कर दिया, इकट्ठा कर लिया। ओके, देन व्हाट हैपन, इट विल गोइंग टू गो टू द हिस्टोरियंस। अब हिस्टोरियंस क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, एंड देन दे हैव सम पर्टिकुलर डाटा, एंड देन दे विल गोइंग टू रीड इट, दे विल गोइंग टू एनालाइज इट, they will gather information, and then they will conclude it, and that conclusion is our history on behalf of this manuscript inscription archaeology. Okay, so this is all about our past. This is the things like कहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है। हमें वो बंदा कौन था जिसने हमें बताया कि यार ये तुम्हारा पास्ट है, वो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे, वो हमारे हिस्टोरियंस थे जिनको पास्ट में इच्छा थी। ओके, तो आपने कभी नोटिस करा है कि हमारी किताब का नाम, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही पूछ लिया था, वंस आई स्टार्टेड द बुक आई आस्क्ड यू व्हाई इट इज़ पास्ट नॉट पास्ट, बिकॉज अब इसके पीछे इन्होंने एक फैक्ट भी दिया है, पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब पास्ट आपके फ्रेंड के कम्युनिटी के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, या पास्ट इंडिया के लिए और दूसरे कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट रहेगा। और इवन दो क्या, अगर फार्मर है, हर्डर है, उन सब की अलग अलग लाइफ थी, किंग्स क्वीन, उनके सबके पास अलग अलग थे। मर्चेंट का ज़िंदगी अलग थी, आपकी लाइफ अलग है। मर्चेंट की लाइफ क्राफ्ट पर्सन से अलग है, क्राफ्ट पर्सन की किंग से अलग है, किंग की हर्डर से अलग है या फार्मर से अलग है, सो ऑन द डिफरेंसेस आर दीज। ओके, अब क्या करते हैं, अभी भी आप लोगों को पता है दैट इन योर हाउस देर इज़ अ डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम, इन अनदर हाउस देर इज़ अ डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यू विल फाइंड डिफरेंट कस्टम। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं, जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, फिशिंग से लेते हैं, हंटिंग से लेते हैं, या फिशिंग से, हंटिंग से, या फॉरेस्ट का जो भी उन्हें मिलता है उसी से ही दे जस्ट हैव देयर फूड लाइक डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। बट जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, जैसे कि हमारे जैसे लोग, वो हम लोग किस पे डिपेंडेंट है, हम लोग फूड सप्लाईज पे डिपेंड है। वो फूड सप्लाईज जो हमारी आती हैं, करेक्ट, उस पर हम लोग डिपेंडेंट है। अब यही सारी चीज़ें जो आज का जो फैक्ट है, यही हमारे क्या था, पुराने में भी यही था, पहले भी लोगों के साथ यही था। कुछ लोग डिपेंडेंट थे, कुछ लोग प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और है जो डिफरेंस है। अब हमें ये पता है कि राजाओं के लिए जो बहुत बड़ी चीज़ होती थी वो ये होती थी कि जब वो किसी भी बैटल के अंदर जीतते थे, और वो अपने रिकॉर्ड रहते थे, ठीक है। अब क्या होता था, एक ऑर्डिनरी आदमी क्या करता था, या हंटर या फिशिंग फॉक या गैदरर या फार्मर या हर्डर्स, वो अपने ऐसे रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाई? वो ऐसे रिकॉर्ड अपने नहीं रखते थे। राजा का तो हमें ईजिली पता चल जाता था, बट हमें क्या पता चला कि यार फार्मर ने वीट और बार्ले सबसे पहले कहाँ उगाया था, या राइस सबसे पहले कहाँ हुई थी। सो दीज ऑल थिंग्स केम टू नो। हमें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, हमें ये सारी आर्कोलॉजी ने बताई हैं, आर्कोलॉजी ने ढूंढा है सब कुछ, एंड देन हिस्टोरियंस ने उसे डाटा गैदर करके एंड देन दे मेड अ कंक्लूशन। ओके, सो ये चीज़ हमें वहाँ से पता चली है। लेटर ऑन अब हम लोग जाते हैं नीचे। वाई डू डेट्स मीन? भैया डेट्स का मतलब क्या है? डेट्स का मतलब ये बहुत ईजी है, एक चीज़ याद रखिए, अभी चल रहा है क्या, 2020, राइट, 2020 अभी चल रहा है। वी ऑल नो बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19। अगर किसी को याद भी नहीं तो लेट मी टेल यू, दिस इज 2020। सो इन 2020 व्हाट इज़ हैपनिंग, अभी हम 2020 पे हैं। सो जो ज़ीरो है अभी, लेट मी गिव यू सम गुड एग्जाम्पल ऑन दिस। ओके, सो हमारा जो ज़ीरो है उससे ये मेरा ज़ीरो है, ओके, एंड हेयर वी आर हैविंग 2020, राइटिंग गंदी सी है बट प्लीज़ गाइस, ओके 2020, ओके। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़
अब इससे पहले जो भी डेट्स आएंगी वो BC में जाएंगी, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट। ओके, और ये AD में आएगी, ये AD में आएंगी, ये CE, दैट मीन्स कॉमन एरा। ओके, सो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो क्राइस्ट के बर्थ के बाद में जो भी हम लोग जा रहे हैं वो हम लोग सीधा सीधा जा रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 2020। अब इसमें हम लोग उल्टा चलता है, अब हम लोग यहाँ से उल्टा चलता है, उल्टा चलता है इन द सेंस यहाँ पर आया होगा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन सो ऑन, ऐसे करते करते। सिमिलरली यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट में चल रहा था। यहाँ पे अगर 2020 है, फिर 2019 है, फिर 2018 है, फिर 2017 है, 2016 है, 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 2020। तो इस तरीके से ये सब AD में आएगा, ये सब BC में आएगा। और so sorry, I just move to the next unit. ओके, सो इस तरीके से आएगा। अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, आप लोग ये जो लेटर्स विद डेट, ऐसे जो लेटर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें मिस ना करा करें। तो आज आपका चल रहा है, जैसे मान लो इसमें 2005 का उसने एग्जाम्पल दिया, तो 2005 का इसने एग्जाम्पल दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे। AD का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द AD? AD इज़ एनो डोमिनी। सो अभी 2020 चल रहा है, तो AD 2020, एनो डोमिनी 2020। अब AD को ही आप CE से भी बिलोंग कर सकते हो, दैट इज़ कॉमन एरिया। और जो क्राइस्ट के जो बर्थ से पहले वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसको आप क्या कर सकते हो, एक तो मैंने बताया था बिफोर क्राइस्ट BC हम लोग बोलते हैं, और एक आप बोल सकते हो BCE, बिफोर कॉमन एरा। यू कैन से इट बिफोर क्राइस्ट की जगह यू कैन से दैट BCE ऑल्सो, लाइक बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा के बाद में क्या सीन था, ये भी आप इसको बोल सकते हो। सो दिस थिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। PCI लिख दिया है, कोई नहीं। ओके, सो अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज, डोंट लूज योर होप, आई नो यू गाइज आर फीलिंग बोरिंग। ओके, सो देन देर इज़ अ लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अ डेसीफर्मेंट। डेसीफर्मेंट क्या होता है, डेसीफर्मेंट जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो सालों पहले जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी उनकी कुछ ना कुछ लैंग्वेज होती होगी। अब हमें क्या पता, अभी ये तो हमने देखा भैया संस्कृत थी, एक तमिल ले रखी है, और एक और लैंग्वेज थी जो ये लोग बोलते थे, करेक्ट। सो ऐसे इन्होंने लैंग्वेज में अभी तो अपने को बता दिया था, बट अब क्या होता था, उनकी कुछ इस तरीके से कुछ डिपिक्शन था। तो जो ये देखो, ये दिख रहा है आपको PTO, जैसे P को एक स्क्वायर से, देन ये हाफ D से यहाँ पे लाइन को लाइन ही बना दिया पूरा का पूरा। तो अब क्या होता है, जो भी हमारा टाइम, जो लैंग्वेजेस जो हमारे स्क्रिप्ट्स में यूज़ करी थी बहुत साल पहले, उसके बाद में क्या हो गया, धीरे 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 वो चेंज होता गया। तो स्कॉलर्स ने क्या करा, इन सब साइंस को पढ़ा और इनकी साउंड को उन्हें जनरेट करा, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमारे अल्फ़ाबेट ले लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, डेसीफॉर्मेट बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेसीफॉर्मेट बोलते हैं। अब जैसे एक यहाँ पे है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ द डेसीफॉर्मेट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आई है भैया, ये इजिप्ट से आई है। पहली चीज़ तो ये याद रखना, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में। इजिप्ट इज़ अ कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका, जहाँ के किंग एंड क्वींस 5000 साल पहले, ठीक है, वहाँ पे 5000 साल पहले भी राजा रानियाँ थी। एक चीज़ याद रखना है, डेसीफॉर्मेट कहाँ से आया है, इजिप्ट से आया है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है, और उस कंट्री के अंदर 5000 पहले राजा रानियाँ एग्जिस्ट करते थे। ओके, तो रोसेटा एक टाउन है जो कि नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट के अंदर है। रोसेटा क्या है, एक टाउन है जो कि इजिप्ट के अंदर है, नॉर्थ कोस्ट के ऊपर। एंड हेयर आर इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड, और यहाँ पे क्या मिला, हमें पत्थर मिले जिनके ऊपर लिखा हुआ था। अब वो क्या इंस्क्रिप्शंस थी, वो अलग अलग 3 लैंग्वेजेस में थी, पहली ग्रीक के अंदर और 2 इजिप्ट की अलग अलग लैंग्वेजेस थी। स्कॉलर्स ने क्या करा, ग्रीक जो थे ना, फिगर आउट कर लिया, जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई थी उसे ईजिली फिगर आउट कर लिया कि जो राजाओं के जो नाम है और किंग्स के जो नाम है ना, वो एक कार्टूश के अंदर बंद करे हुए हैं, लाइक एक ब्लॉक होता होगा उसके ऊपर, लाइक फॉर द फेमस लाइक किंग और क्वीन के ऊपर उसे कार्टूश में ऐसे बंद करके रखते थे। सो ईजिली ग्रीक लैंग्वेज में ये डिपिक्ट हो गया कि भैया ये राजा का नाम था, ये रानी का नाम था। ओके, सो बाद में क्या करा उन्होंने, देन दे प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइड बाय साइड। बाद में उन्होंने क्या करा, ग्रीक और इजिप्शियन को ऊपर नीचे रखा,
और उससे साउंड्स उन्होंने निकाली सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि भैया लिखा हुआ क्या है. अब जैसे एज यू कैन सी ए लाइन स्टूड फॉर एल एंड अ बर्ड फॉर ए. वंस दे नो व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड द इंस्क्रिप्शन. अभी जैसे मान लो ये लिखा था उन्होंने, तो दिस इज़ व्हाट दे हैव रिटन, दिस इज़ व्हाट दे हैव रिटन. तो इन्होंने क्या करे, इनको दोनों को साइड बाय साइड रख के इन्होंने देखा कि यार किसका जा रहा है, किसका सही चल रहा है, इसका सही चल रहा है, इसका सही चल रहा है, या उससे क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है. अकॉर्डिंगली उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट रखे एंड दे कैन ईजिली डिपिक्ट लाइक व्हाट इट इज़ रिटन. सो दिस इज़ व्हाट. ये हमारा पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. अब आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. तो ये तो पहला क्वेश्चन है यार, ये तो मैच द फॉलोइंग है, तुम लोग आराम से कर लोगे. सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन. अभी आपको ये पता है कि व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, सो यू कैन ईजिली गो टू द पैरा एंड देन वट एवर आई हाईलाइटेड यू कैन टेक फ्रॉम दैट. ओके, अभी इसने वापस ये डिस्कशन का क्वेश्चन आ गया कि भैया रशीदा का क्वेश्चन पे जाओ, क्या उसके तुम आंसर्स निकाल सकते हो, ये तुम्हें खुद को सोचना है. अब इतना तो मैं समझ में आने के बाद में तुम इस चैप्टर को एक बार और रीडिंग लगा दोगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू. नाउ यू कैन राइट आंसर इन योर ओन लैंग्वेज. तुम्हें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जो रट्टाफिकेशन जो पहले चलती थी दैट इज़ नॉट नेसेसरी नाउ. अब मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड. अब वो जो आर्कोलॉजिस्ट में मैंने 3 फोटो दिखाई थी वो वहाँ चेप देना, ठीक है. और विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन. अब उसमें से कौन कौन सी चीज़ें स्टोन से बन सकती हैं, बनी हुई बन सकती हैं. वट डू यू थिंक ऑर्डनरी मैन और वुमेन डिड नॉट जनरली कीप. ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि ऑर्डनरी मैन और वुमेन अपने रिकॉर्ड नहीं रखते थे एंड ऑल दैट. बस अब ये 5th क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से. 2 ऐसे वेज तुम्हें बताने हैं ऑर्डनरी फार्मर से राजाओं की ज़िंदगी क्यों डिफरेंट होती थी, ठीक है. तो ये तो तुम कर ही लोगे. अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके किसी भी चैप्टर ख़त्म होने पे. ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, इट्स नॉट लाइक यूपीएससी डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन दे देगी. उसमें एक चीज़ ये है कि यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि आज के बिगनिंग कितने मतलब द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 60,000 साल पहले हुआ था, ऐसा क्वेश्चन वो नहीं पूछने वाली है. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज वो ऐसा ही घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेती है एंड देन यू नीड टू आंसर इट आउट. तो एक चीज़ आपको बस जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए कि 8 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, ठीक है. और जो पहली सिटीज़ थी वो इंडस के अलॉन्ग बनना शुरू हुई थी आज से 4700 ईयर्स अगो. सिटीज़ जो थी गंगा वैली की बहुत बड़ी थी और वो मगध एक बहुत बड़ा किंगडम था. और एडी और सी को क्या बोलते हैं, एडी और सी को क्या बोलते हैं, और एडी सी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके गाइस, सो हेयर वी कैन फिनिश आवर चैप्टर. आई होप यू विल गोइंग टू लाइक दिस. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर. थैंक यू.